Now today let's start with chapter number 8, Nature Calamity. Now in this chapter we will study about layers of atmosphere, volcano के बारे में, tidal wave और tsunami, flood और drought के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. Now look at the picture given below और आप identify करोगे natural phenomena. आपको words use करने हैं from the help box. ये help box क्या है? इससे आपको words use करने. When living things on the earth become victims of nature, we see that natural disaster has happened. Now, earthquake की बात करते हैं. Sudden violent shaking of the ground, movement of the earth crust due to volcanic eruption या due to volcanic action जो great destruction cause करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अर्थ. ये जो movement होती है, they are caused by shifting of layer of rocks deep under the earth. जो actual point होता है deep inside the earth where earthquake begins, उसको हम focus कहते हैं. एंड जो आपका जो पॉइंट है एट सरफेस का, जो डायरेक्टली अबव द फोकस होता है, उसको क्या कहा जाता है? एपिसेंटर. और जो मैक्सिमम इफेक्ट होता है earthquake का, वो कहाँ पे होता है? एपिसेंटर पे. और ये रिड्यूस करता है एज वी मूव अवे फ्रॉम द एपिसेंटर. जैसे ही आप एपिसेंटर से दूर जाएंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा. आफ्टर इफेक्ट क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑन ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ या फिर डिजीज स्प्रेड हो जाता है. अब measuring of earthquake and their effect. Effect of earthquake depends upon the force with which they occur. Earthquake बहुत ज़्यादा weak होते हैं और ये they shake the material, they are capped from the self, while some so strong कि जो building fell down हो जाती है, इससे क्या होता है? Death होती है. Intensity of the earthquake can be measured using instrument जिसे हम seismograph कहते हैं. और richer scale क्या होता है? जो standard scale होता है जिसका हम use करते हैं to find out the intensity of the earthquake. जिसका scale 1 to 10 होता है और ये मेजर करता है 1 to 10. 1 to 2 जो होता है वो ज़्यादा फेल्ट नहीं होता और जो 3, 4, 5 होता है उससे डैमेज होता है. ठीक है. earthquake मेजरिंग 6 और अबव, उससे क्या होता है? वाइड स्प्रेड डैमेज होती है प्रॉपर्टी का और वी कॉज डेथ ऑल. सेफ्टी मेजर ड्यूरिंग earthquake. देखो, इफ यू आर इनसाइड अ रूम, टेक शेल्टर अंडर अ टेबल. डू नॉट रन अराउंड इन पैनिक. डू नॉट स्टैंड अंडर और नियर द ऑब्जेक्ट, क्योंकि अगर वो गिरेगा तो हिट करेगा. If you are outdoors, stand in open area, away from building. आपको building या trees से दूर खड़ा होना है. Volcano क्या है? Vent in the crust के जो allow करता है hot magma from below the surface to come. ठीक है. अब vent क्या होता है? रीजन जहाँ पे earth crust weak होता है और crack develop करता है. magma बाहर आता है surface के, जिसे हम lava कहते हैं. और after the volcanic eruption आता है crater is formed. क्या form होता है? Crater form. ठीक है. Volcano are of 3 types, mainly active, dormant, active. Active volcano कौन से होते हैं? Which keep erupting often and are always active. Barren Island, अंडमान निकोबार आइलैंड, ये क्या है? Active volcano. Next is dormant volcano, which do not erupt in long time and have ability. ये possibility है कि वो nearer future में क्या होगा? erupt. ठीक है. माउंट मोना किया हवाई आइलैंड का, ये क्या है? dormant volcano. Exit to volcano, ये erupt thousands of years and no possibility कि अब ऐसी possibility नहीं है कि ये आगे भी erupt होगा. जैसे आपका माउंट एशिस्टिका जापान, ये extinct volcano. After effects of volcanic eruption, destruction of farmlands, roads, damage to property and loss of life. Volcanic dust blocks जो होता है sunlight के, जिससे क्या होता है? weather pattern change होता है. Spread of disease, यहाँ पे disease का spread. Now advantages of volcanic eruption. देखो, soil after volcanic eruption become fertile and is good for farm. क्योंकि जो volcanic लोकेशन होती है, हम उनका किस लिए यूज करते हैं? इज यूज्ड क्या जनरेट करने के लिए? जियोथर्मल एनर्जी. नाउ tidal waves and tsunami. जो tidals है, they are occurring of rise and fall of sea level. The waves होती है sea की are high and sometimes they are low. The rise and fall of the waves due to gravitational force of the sun and moon जो act करती है ocean. ठीक है. Tide reach maximum height when the sun, moon and the earth are in the straight line. Rise of large amount of water in a form of huge waves. Under the earthquake, उसे क्या कहा जाता है? सुनामी. ये when there is a disturbance between layer of the rock in the earth, क्या होती है? Disturbance होती है. When large amount of energy is released, which leads to formation. जब ज़्यादा एनर्जी निकलती है तो क्या होता है? फॉर्मेशन होता है ह्यूज वेव, जिन्हें हम लार्ज सुनामी वेव्स कहते हैं, जिससे क्या होता है? लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. इट इज एडवाइजेबल टू स्टे एट हाई एल्टीट्यूड रीजन. आपको हाई एल्टीट्यूड रीजन पे रहना चाहिए ड्यूरिंग सुनामी एंड थ्रेट. 26 दिसंबर 2004 सुनामी अकर्ड ड्यू टू अर्थक्वेक इन इंडियन ओशन. ये आपके साउथ एशियन कंट्री जैसे कि इंडोनेशिया और इंडिया को भी इफेक्ट कर.
नेक्स्ट इज फ्लड. ये ओवरफ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है बियॉन्ड द नॉर्मल लिमिट्स. अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ द अर्थ सरफेस जो है वो वाटर से कवर्ड है. एंड व्हेन वाटर बॉडीज लाइक ओशन, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स हैव एक्सेस वाटर, दे ओवरफ्लो, जिससे क्या होता है फ्लड्स हो. फ्लड अकर ड्यू टू नेचुरल फैक्टर जैसे हैवी रेनफॉल हो गया, लो प्रेशर हो गया, या फिर एक्सेस मेल्टिंग ऑफ स्नो हो गया. फ्लड कैन प्रिवेंट इफ देयर इज प्रॉपर स्ट्रीम और चैनल, ठीक है, प्रॉपर एम्बैंकमेंट्स हो गए, इनफ ट्रीज हैं और या इनफ मड है जिससे एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर सके. आफ्टर इफेक्ट क्या है? स्प्रेड ऑफ वाटरबॉर्न डिजीज, डैमेज टू प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइफ. जून 2013 इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड, यहाँ पे हैवी रेनफॉल हुआ है जिससे डिवास्टेटिंग फ्लड और लैंडस्लाइड हुए. 5,700 पीपल्स दे वर बिलीव्ड टू बी डेड. इतने लोग मर गए. सेफ्टी मेजर्स आप क्या यूज करेंगे ड्यूरिंग द फ्लड? लीव योर एरिया वेयर फ्लड इज बाउंड. डू नॉट गेट पैनिक. ऑलवेज लिसन टू फूड वार्निंग, फ्लड वार्निंग. कीप मेडिसिन और फूड सप्लाई और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन प्लेंटी. ठीक है. शिफ्ट टू हायर लोकेशन. ठीक है, आप जाके हायर लोकेशन पे शिफ्ट हो. ड्रॉट. लैंड बिकम्स ड्राई विदाउट एनी मॉइस्चर ड्यू टू लैक ऑफ रेन. इसे कंडीशन को क्या कहा जाता है? ड्रॉट. और जो ड्रॉट होती है ये शॉर्टर ड्यूरेशन पे होती है और कंटिन्यू फॉर ईयर. ड्रॉट अकर ड्यू टू लैक ऑफ इनसफिशिएंट रेनफॉल, जब एक्सेसिव यूसेज होता है एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्स. इफेक्ट ऑफ ड्रॉट: malnutrition and death of human being, destruction of crop और mass movement of people. जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस क्या होती है? मास मूवमेंट. The effects of drought can be controlled by making judicious usage of available water, adapting to rainwater, recycling of water, या फिर कल्टिवेटिंग क्रॉप. उन क्रॉप को कल्टिवेट करो जिनके लिए आपको कम पानी की नीड. ठीक है. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.